हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर न्यू इंग्लिश जेम्स रीडर ऑफ ग्रेड 6. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एंड ऑफ स्कूल डेज. This chapter is an extract from David Copperfield which has been written by Charles Dickens. अब David Copperfield एक बहुत लंबी नॉवल है. In fact, it is one of the lengthiest novels जिसके 64 chapters हैं. This novel is about David's birth, his childhood, marriage, family, etc. हम इस नॉवल का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पोर्शन करने वाले हैं एंड ऑफ स्कूल डेज. बैकग्राउंड अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी इसका बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर. In this video, we are going to cover about the author, that is Charles Dickens, the main characters in this chapter, background of this chapter, and reading an explanation along with word meanings. About the author, this has been given in page 112 of your book. ये जो आपको आपके स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है, ये है Charles Dickens. He was born in 1812 and he died in 1870. Charles Dickens is one of the greatest English novelists. Most of his works with young boys as the central character. Central character मतलब main character depict the lives of the deprived. Deprived मतलब who don't possess much in life, so they are not able to enjoy life much. हिंदी में हम deprived को कहते हैं वंचित. This earned him the title of spokesman for the poor. His first full novel, The Pickwick Papers, brought him immediate fame. मतलब वो अपनी first novel के बाद ही famous हो गए. Immediate means तुरंत. So fame is famous. Most of Dickens' novels, including David Copperfield, were first serialized in the monthly magazines. So David Copperfield के अलावा और कौन सी famous novels हैं Charles Dickens की? Oliver Twist, A Christmas Carol, A Tale of Two Cities, Great Expectations. In higher classes, we are going to read more and more about his works. Main characters कर लेते हैं एक बार. David Copperfield, the central character. Central character मतलब main character and the narrator of the story. Renamed as Trotwood Copperfield by his aunt. Aunt है David's kind-hearted aunt. Dr. Strong, headmaster of David's school. Mr. Dick lives with David's aunt and is extremely devoted to her. Before starting this chapter, थोड़ा इस chapter का background देख लेते हैं. David's father died before his birth. After his birth, his mother and a caretaker named Peggotty took care of him. उसकी मम्मा ने दूसरी शादी कर दी. His mother remarried, but उसके stepfather थे. Stepfather मतलब उसके सौतेले father. He was a very cruel man and he ill-treated David. After David's mother died, his stepfather sent him to London as child labor. So वहाँ से डेविड भाग गया. डेविड ran away from there and went to his great aunt. His great aunt renamed him as Trotwood Copperfield and sent him to Dr. Strong's school for education. हम जो करेंगे इसके आगे करेंगे कि अब उसके स्कूल डेज फिनिश हो गए. सो चैप्टर का नाम ही है एंड ऑफ स्कूल डेज एंड नाउ ही हैज़ टू एंटर द बिग वर्ल्ड. ही हैज़ टू चूज द राइट प्रोफेशन फॉर हिम. सो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकन्स नॉवल डेविड कॉपरफील्ड. ये अब आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज 109 पे. यंग डेविड हैज फिनिश्ड स्कूल एंड इज एक्साइटेड टू स्टेप इनटू द बिग वाइड वर्ल्ड ऑफ ग्रोन अप्स. He wants to be taken seriously and pretends to be much traveled and experienced. Does he succeed? So now David will act, he will pretend कि अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है school going. He'll act maturely. Let's start reading the chapter. I'll be reading and explaining this chapter in detail. And obviously, like all other videos of mine, there are going to be a lot of pictures so that you are able to visualize, picturize this chapter ko. I don't know whether I was glad or sad when my school days ended and I left Dr. Strong. So Dr. Strong कौन है? Headmaster of David's school. Now David doesn't know कि वो school finish हो गया है तो वो happy है या sad है. Glad means happy. I had been very happy there. I was fond of the doctor. I was popular in that little world. Little world means school. For these reasons I was sad to leave. But I was glad for other silly reasons. Unclear ideas of being an independent young man and his importance, of the wonderful things that he can see and do, and the wonderful ways in which he can impress the society quite excited me. These ideas influenced my boyish mind so strongly that I left school without much regret. अब इसको एक बार समझते हैं इसमें क्या लिखा है. डेविड के स्कूल डेज ओवर हो गए. Now he has mixed feelings. Mixed feelings means he doesn't know whether he's happy or sad. Now why was he sad? He was sad because he was fond of Dr. Strong, जो headmaster थे स्कूल के, and he was popular in the school and had spent many happy days there.
अब वो हैप्पी क्यों था? वाई वॉज ही एक्साइटेड? ही वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज अब वो इंडिपेंडेंट फील कर रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस इन लाइफ, एंड ही वॉज एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एज अ यंग adult. These thoughts influenced my boyish mind so strongly that I left school without much regret. अब इसका क्या मीनिंग है? इन थॉट्स ने डेविड के माइंड पर बहुत इन्फ्लुएंस किया था कि उसको कोई अफसोस नहीं था कि उसके स्कूल डेज फिनिश हो गए हैं. आई कांट रिमेंबर हाउ आई फेल्ट अबाउट लीविंग स्कूल एंड हाउ आई लेफ्ट इट. उसे याद ही नहीं कि उसे कैसा फील हुआ अबाउट लीविंग स्कूल एंड उसने स्कूल कैसे छोड़ा. इस इवेंट का, जो स्कूल को हम फाइनल गुड बाय करते हैं, इसका उसे कोई खास मेमोरी नहीं है. आई सपोज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ कन्फ्यूज्ड मी. I know that my adolescent experience did not amount to much. Adolescent means it's a time when a person grows from a child to an adult. So उसको पता था कि अभी उसको कुछ खास experience नहीं है as a grown up, and that life was more like a great fairy tale which I was just about to read. अब डेविड कोई बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है. इन थॉट्स ने उस पर ग्रिप किया हुआ था, उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इन थॉट्स का, दैट आई विल बी लिविंग लाइफ एज एन अडल्ट फ्रॉम नाउ ऑन एंड दैट आई एम नॉट अ स्कूल गोइंग चाइल्ड एनी मोर. सो इन थॉट्स ने उसको बहुत फैसिनेट किया हुआ था, बट उसको बड़े होने का कुछ खास एक्सपीरियंस तो था नहीं, था तो स्कूल का ही बच्चा ना, अभी जस्ट स्कूल से पास आउट हुआ था. उसके लिए लाइफ वॉज मोर लाइक अ फेरी टेल. मतलब उसे अभी नहीं पता था कि अडल्टहुड में कितनी हार्डशिप्स होती है लाइफ में, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं एज एन अडल्ट आपके ऊपर. अब आगे हम जो पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि डेविड का अपनी आंट के लिए डीप रिस्पेक्ट है. डेविड टेक्स हर आंट्स एडवाइस, उनके ओपिनियंस वेरी सीरियसली. माई आंट एंड आई हैड मेनी सीरियस डिस्कशंस अबाउट माई फ्यूचर. फ्यूचर इज भविष्य. For a year or more, I had tried to find a good enough answer to her oft-repeated question, what would you like to be? Oft-repeated मतलब often repeated. Often repeated से बना है oft-repeated. मतलब वो ज़्यादातर मुझसे एक ही सवाल 1 साल तक पूछती रही कि तुम क्या बनना चाहते हो. But there was nothing I particularly liked. But David had no answer. उसे पता ही नहीं था कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में. If I had known how to sail a ship and traveled the world to make a great discovery, I might have considered that a suitable life. अगर डेविड कह रहा है कि अगर उसे पता होता कि शिप कैसे सेल करते हैं ताकि मैं दुनिया घूमूं और कोई खोज कर पाऊं, तो वो शायद मेरे लिए एक सूटेबल लाइफ होती. Since that was not the case, but ऐसा तो था नहीं, उसको शिप सेल करनी नहीं आती थी. I desired to pursue something that wouldn't require her to spend too much money. उसने क्या सोचा कि मुझे शिप सेल करनी तो आती नहीं और मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ. सो उसने क्या क्राइटेरिया रखा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरी आंट के ज़्यादा पैसे खर्च ना हो. आई ऑल्सो डिज़ायर्ड टू डू वेल इन इट वट एवर इट टर्न्ड आउट टू बी. एक उसको था कि उसके आंट के ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, एंड वट एवर आई डू आई विल एक्सेल इन दैट. उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा. ट्रॉट माई डियर, सेड माई आंट, वन मॉर्निंग इन द क्रिसमस सीजन व्हेन आई लेफ्ट स्कूल. अब हमने ये पढ़ा था कि आंट ने डेविड को रीनेम कर दिया था. फ्रॉम डेविड कॉपरफील्ड, आंट हैड रीनेम्ड हिम एज ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड. As this naughty point is still unsettled. अब इसका क्या मीनिंग है? naughty point means complicated and difficult matter. क्या है naughty point? कि डेविड क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है अपनी लाइफ में, इसका आंसर उनको नहीं मिल रहा था. Even after many serious discussions, they were not able to arrive at a final conclusion. And as we must not make a mistake in our decision, it would be better if we give it some time. So आंट क्या कह रही है? Let's give it some time. हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए in this decision. जब तक we don't reach a final conclusion, a final decision कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, ये ज़रूरी है कि तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो. सो आगे पढ़ते हैं. इन द मीन टाइम यू मस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट एज अ स्कूल बॉय. कि तुम अपना नज़रिया चेंज करो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो. डेविड था तो बच्चा ही ना, उसका जस्ट अभी स्कूल फिनिश हुआ था. आई विल, आंट. It has occurred to me, my aunt went on, that a little change, a glimpse of the world outside, may help you make up your mind. अब आंट को क्या लग रहा है कि थोड़ा माहौल अगर चेंज होगा और वो थोड़ी बाहर की दुनिया दिखा, ग्लिम्स मीन्स नज़र, इट विल हेल्प डेविड टू मेक अप हिज माइंड कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है. You could visit the old part of the country again, for instance, and see that odd woman with a wild name.
said my aunt, rubbing her nose. Old part of the country means homeland, जहाँ से किसी की family originally आती है. So aunt David को कह रही है कि you can visit the old part of the country again, मतलब जहाँ से David की family originally आई थी. And aunt suggest कर रही है कि तुम वहाँ जाओ जहाँ उसका पुराना घर था and वहाँ उस odd woman के साथ जाकर थोड़े दिन रहो जिसका wild name था. अब इसमें reference नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. So the name of that lady was Peggotty. एंड वो डेविड की केयर टेकर थी. मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था. सो आंट को उसका नेम बिल्कुल नहीं पसंद है. शी सेज कि उस औरत के साथ जाके रहो जिसका इतना वाइल्ड सा, फनी सा, वियर्ड सा नेम है. सो बेसिकली आंट उसको फ्रीडम दे रही है कि जाओ थोड़े दिन जाके वहाँ जाके रहोगे तो तुम्हारा नज़रिया बदलेगा एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. अब डेविड क्या कह रहा है? ऑफ ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड आंट I should like it best. So now David also liked this idea of visiting the old part of the country and spending some time with his caretaker and her family. Well, said my aunt, that's lucky, for I should like it too. But it's natural and wise that you should like it. अब आंट क्या कह रही है? Natural क्यों? क्योंकि आंट जानती है that David is fond of his caretaker Peggotty. And wise क्यों? Because ये अक्लमंदी इसी में है कि तुम थोड़ी दुनिया देखो so that you can decide what you want to be in life. And I'm sure that anything you do Trot, वो Trotwood को प्यार से Trot बोलती है, will always be natural and वाइज. अब आंट उसको एनकरेज कर रही है. शी इज़ प्लेसिंग हर कॉन्फिडेंस इन हिम कि तुम जो भी करोगे, जो भी डिसाइड करेंगे, आई एम श्योर इट वुड बी नेचुरल एंड वाइज. वो तुम सही डिसाइड करोगे. आई होप सो आंट. But what I want you to be, Trot, continued my aunt, is a firm fellow, a fine and firm fellow with a will of your own. इसका क्या मीनिंग है? That aunt ये कह रही है कि मैं चाहती हूँ तुम एक firm fellow बनो. Firm मतलब you should be sure about decisions. With resolution. Resolution means decision to do or not to do something. You should be very sure about the decisions you take in life. With determination. अब determination बना है determine से. Determine means निश्चय. So determination is a quality कि जो तुम decide करो you are sure about it. With strength of character that cannot be influenced except for good reason by anyone or anything. Strength of character means being strong or determined. एक ऐसे इंसान बनो, एक ऐसे व्यक्ति बनो जो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो पाए. Now good influence is always welcome. यहाँ आंट का कहने का मतलब है कि तुम कभी भी मजबूरी में कोई काम ना करो किसी के दबाव में आकर. That's what I want you to be. That's what your father and mother might both have been. Heaven knows. अब बेसिकली इसको हिंदी में बोलेंगे ना तो इसका मीनिंग है कि भगवान ये जानता है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा होते वो भी यही चाहते कि तुम एक फर्म फेलो बनो. I told her that I hoped I would be what she wanted me to be. डेविड कहता है कि मैं होप करता हूँ कि मैं आंट आपकी उम्मीदों पर खरा हो उतरूँ. मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा आप चाहते हो. आई वॉन्ट टू बी अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु हैज़ अ विल ऑफ माई ओन. मैं किसी के दबाव में आके कोई काम ना करूँ. आई वॉन्ट टू बी अ फर्म फेलो so that you may begin to rely on yourself and to act for yourself, said my aunt. I shall send you on your trip alone. Now rely means भरोसा. So aunt क्या कह रही है डेविड को कि तुम्हें इस ट्रिप पे अकेले जाना चाहिए. क्यों? ताकि तुम अपने पे भरोसा कर पाओ. ताकि मतलब वो बेसिकली शी wants that David should become self confident. I did think of asking Mr. Dick to go with you. ये हमने पढ़ा था कैरेक्टर्स में. मिस्टर डिक कौन थे? वो आंट के साथ रहते थे and he was very devoted to her. But on second thoughts, I shall keep him to take care of me. So आंट क्या कह रही है? पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अकेले ना भेजूं, मिस्टर डिक को तुम्हारे साथ भेजूं. बट नाउ आई हैव चेंज्ड माई माइंड. इसलिए चेंज ऑफ माइंड जब होता है तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ऑन सेकेंड थॉट्स. सो नाउ आंट हैज़ चेंज्ड हर माइंड. अब आंट कह रही है कि मिस्टर डिक को मैं अपने पास ही रखूंगी सो दैट ही कैन टेक केयर ऑफ मी एंड इस ट्रिप पे तुम्हें अकेले जाना चाहिए. मिस्टर डिक लुक्ड अ लिटिल डिसअपॉइंटेड. नो मिस्टर डिक का भी मन होगा डेविड के साथ इस ट्रिप पर जाने का, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड से हो गए. Until the pride and honor of taking care of the most wonderful woman in the world made him cheerful again. So ये मैंने आपको बताया that Mr. Dick was very devoted to aunt. So he thinks of her as the most wonderful woman in the world. So उनका ध्यान रखना है. Okay, then that's okay. It is my pride to take care of her. It is my honor. So then he was cheerful again. My aunt gave me a generous sum of money, a portmanteau and a loving goodbye. A generous sum of money means large amount of money. इतना डेविड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज़्यादा आंट ने उसे पैसे दे दिए. A portmanteau क्या होता है? It's a traveling suitcase that opens in 2 parts. So ये जो आपको आपके स्क्रीन पर इमेज दिख रही है ये एक पोर्टमैंटो है. पुराने ज़माने में ओल्ड टाइम्स में इस तरह के ब्रीफ केसेस सूट केसेस होते थे जो 2 पार्ट्स में ओपन होते थे. And a loving goodbye.
At the time of leaving, she gave me some good advice and many kisses. She said that since her wish was that I should take care of myself and think for myself, I should stay a few days in London if I wanted to. So aunt क्या कह रही है कि थोड़े दिन लंदन में रहो so that you can think what you want to do in life. She wants कि डेविड जितना हो सके दुनिया एक्सप्लोर करे, जितना ज़्यादा वो एक्सप्लोर कर पाएगा उतना वो बेटर डिसीजन पे अराइव कर पाएगा. She said I could do it either on my way to Suffolk. Now Suffolk is the place, the old part of country जहाँ डेविड जाएगा, और when returning. So वो क्या कह रही है, तुम चाहो तो सफॉक जाते हुए तुम लंदन रुक जाओ या सफॉक से वापसी में. So just to give you an idea, जो यूनाइटेड किंगडम है ना, यूनाइटेड किंगडम comprises of स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड. जो डेविड कॉपरफील्ड नॉवल है उसकी जो सेटिंग है, जो लोकेशन है, वो पूरी इंग्लैंड है. इंग्लैंड को थोड़ा जूम इन करके देख लेते हैं. सो ये जो रेड हाईलाइटेड पोर्शन है इंग्लैंड का, दिस इज सफॉक एंड दिस इज लंदन. सो क्या पढ़ा था हमने, दैट डेविड वॉज फ्री, चाहे वो सफॉक जाते हुए लंदन रुक जाए या सफॉक से वापसी में. सो आई वॉज फ्री टू डू एज आई विश्ड फॉर अबाउट अ मंथ. 1 महीना आंट ने उसको दिया. शी सेट नो अदर कंडीशन apart from the advice to look after myself and think for myself, and a promise to write to her 3 times a week and to tell her honestly how I was doing. So aunt ने किन 3 शर्तों पे उसे भेजा कि तुम अपना ध्यान रखोगे, अपने बारे में सोचोगे, advice to look after himself and think about himself, तुम हफ्ते में 3 बार लेटर लिखोगे मुझे, write to her thrice a week, and सच्ची सच्ची बताओगे कि कैसे हो, how you are doing, tell her honestly about how he was doing. Now we'll read that डेविड की जर्नी टुवर्ड्स लंदन एंड सफॉक स्टार्ट हो जाती है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑन माई माइंड. अब इसका क्या मतलब है, मेन एम डेविड के माइंड में क्या था, मकसद क्या था. I remember when I had begun my journey was to appear as old as possible to the coachman. ये जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम कोच कहते हैं. So in old times coaches were used to move on the roads. Car was invented in 1886. ये जो बुक लिखी गई है डेविड कॉपरफील्ड, ये 1840s को लिखी गई है. 1850 को ये पब्लिश हुई थी एज अ बुक. सो जो आदमी, जैसे ये है आपके स्क्रीन पे, जो कोच को चलाता था उसको कोचमैन बोलते थे. सो हियर द नेम ऑफ द कोचमैन इज विलियम. ठीक है, आगे करेंगे. एंड टू स्पीक इन अ ब्रूस्क मैनर. नो ब्रूस्क मीन्स रूडली. Although it was a little difficult to speak like that, I still stuck to it, for I felt it was a grown-up sort of thing. अब डेविड ने अपने बोलने का तरीका बिल्कुल ग्रोनअप्स की तरह कर लिया है. ही इज़ ट्राइंग दैट उसकी वॉइस में उसकी चाइल्डिशनेस, उसका इनएक्सपीरियंस, उसकी इमेच्योरिटी रिफ्लेक्ट ना हो. साथ साथ डेविड ये भी कह रहा है कि ऐसा करना, अपनी वॉइस को ऐसे चेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, टफ था. आई स्टिल स्टक टू इट, मतलब मैं फिर भी ग्रोनअप्स की तरह साउंड करने की कोशिश करता रहा. यू आर गोइंग थ्रू सर, सेट द कोचमैन. अब इसका क्या मीनिंग है, अब कोचमैन डेविड को सर बुला रहा है, वो उसको ऑलरेडी ग्रोन अप की तरह ट्रीट कर रहा है. एंड फिर वो उसको पूछ रहा है दैट आर यू गोइंग टिल योर डेस्टिनेशन, मतलब आर यू गोइंग टिल सफॉक. सो डेविड क्या जवाब देता है, येस विलियम. सो नो, मैंने आपको बताया था कि दैट कोचमैन का नाम विलियम है. आई सेड कॉन्डिसेंडिंगली. कॉन्डिसेंडिंगली मीन्स इन अ सेल्फ इंपॉर्टेंट मैनर, कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ. उसने उसको विलियम क्यों बोला, क्योंकि वो उसको ऑलरेडी जानता था. ऑब्वियसली तभी किसी को नाम से बुलाएगा. आई एम गोइंग टू लंडन, आई शैल गो डाउन टू सफॉक आफ्टरवर्ड्स. सो क्या डिसाइड किया था डेविड ने कि पहले वो लंदन जाएगा फिर वो सफॉक जाएगा. वी वेंट टू द गोल्डन क्रॉस एट चेरिंग क्रॉस, देन टू एन ओल्ड इन अ क्राउडेड नेबरहुड. अब चेरिंग क्रॉस जो है, चेरिंग क्रॉस इज एन इम्पॉर्टेंट जंक्शन इन लंदन. जैसे अगर कोई दिल्ली मेट्रो में बैठा होगा तो अगर हमको ब्लू लाइन से येलो लाइन या पिंक लाइन चेंज करनी होती है तो हम थोड़े बहुत जंक्शन हैं, फॉर एग्जांपल राजीव चौक पर लाइन चेंज कर सकते हैं. सो हम राजीव चौक को बोलते हैं इट्स एन इम्पॉर्टेंट जंक्शन. सो ऐसी चेरिंग क्रॉस इज एन इम्पॉर्टेंट जंक्शन इन लंदन. गोल्डन क्रॉस इज अ प्लेस इन चेरिंग क्रॉस. 1840s-50s में जब ये नॉवल लिखी हुई है, गोल्डन क्रॉस एट चेरिंग क्रॉस कुछ ऐसा दिखता था, आजकल ये कुछ ऐसा दिखता है. इन जो होता है, इन इज स्मॉलर दैन होटल. उसमें होटल जितनी इतनी फैसिलिटीज, इतनी एम्यूनिटीज नहीं होती. नेबरहुड मीन्स लोकेलिटी. सो बेसिकली वो डेविड इज सेइंग कि वो लंदन के जिस होटल में गया वो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में था. सिंपल. अ वेटर शोड मी इनटू द कॉफ़ी रूम. ये आपकी बुक में इमेज है कि डेविड उतरा है कोच से एंड वहाँ उसको जो वेटर है एंड जो चेम्बर मेड है वो उसको वहाँ उसके रूम तक ले जाएंगे. अ वेटर शोड मी इनटू द कॉफ़ी रूम एंड अ चेम्बर मेड कौन होती है, अ वुमन हु इज एम्प्लॉयड इन द इन टू क्लीन बेडरूम्स. जो क्लीनिंग वाली लेडी होती है उसे चेम्बर मेड बोलते हैं. इंट्रोड्यूस्ड मी टू माई स्मॉल बेड चेम्बर. बेड चेम्बर मीन्स बेडरूम.
अब डेविड अपने बेड चेम्बर को, अपने बेडरूम को डिस्क्राइब कर रहा है. इट स्मेल्ट लाइक अ हैकने कोच एंड वॉज शट अप लाइक अ फैमिली वॉल्ट. अब हैकने कौन होता है? इट इज़ अ ब्रीड ऑफ हॉर्स, जैसे आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है. हैकने कोच मीन्स कैरेज पुल्ड बाय हैकने, अ ब्रीड ऑफ हॉर्स. ठीक है. एंड वॉज शट अप लाइक अ फैमिली वॉल्ट. अब वॉल्ट का मतलब हो गया जैसे लॉकर रूम बोलो, जहाँ बहुत वैल्यूबल्स, मनी सब, बैंक में जैसे लॉकर होते हैं ना, तो ऐसी फैमिली वॉल्ट इज लॉकर रूम. उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं होती, बहुत क्लोज्ड होता है. सो ही इज बेसिकली ट्राइंग टू से दैट द स्मेल ऑफ द रूम, द होल वाइब्स ऑफ द रूम, इट वॉज वेरी ऑफुल, इट वॉज नॉट ग्रेट. Nobody looked awed by me. Awed means कोई मुझसे डर नहीं रहा था. Making me painfully aware of my youth. क्योंकि कोई मुझसे डर नहीं रहा था. No one was giving me that importance that I am a grown up. So इससे मुझे और एहसास हो रहा था that I am a child. The chambermaid didn't care for my opinion on any subject. chambermaid को कोई ज़रूरत नहीं लगी मुझसे कोई भी राय लेने की. While the waiter, sensing my inexperience, offered advice. Opinion लेना तो दूर, waiter तो और उसको ज्ञान पेल रहा था और उसको advice offer कर रहा था. Well now, said the waiter, in a tone of confidence, what would you like for dinner? Young gentlemen like poultry in general. Have a fowl. Poultry means birds, जैसे chickens हो गई, ducks हो गई, which are kept domesticated for their meat, eggs, etc. So colloquial speech में as in casually हम poultry और fowl को interchangeably use कर सकते हैं. Scientifically थोड़ा बहुत difference है, but in this we can use it interchangeably. I told him as impressively as I could that I wasn't in the mood for a fowl. तो डेविड क्या कहता है कि मेरा फोल खाने का कोई मूड नहीं है. Ain't you? said the waiter. So अब वेटर कह रहा है young gentlemen are generally tired of mutton. Have a cutlet. अब उसको वेटर ऑप्शंस दे रहा है कि वो अगर फोल नहीं खाना चाहता तो और क्या क्या खा सकता है, तो वो कटलेट ऑफर कर रहा है. ये आपके बुक में इमेज भी है कि ये डेविड बैठा हुआ है और वेटर उसको सारे ऑप्शंस खाने के बता रहा है डिनर के. I agreed to this. इसका क्या मतलब है? That David said okay for cutlet only because I was unable to suggest anything else. David ने cutlet के लिए yes इसलिए कहा क्योंकि उसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो डिनर के लिए क्या ऑर्डर करे. Do you care for taters? said the waiter with a cunning smile. Now taters means potatoes. ये जो आपके स्क्रीन पे इमेज है ये taters हैं. देखो you can see tater tots written. So अगर taters का मीनिंग भूल जाओगे तो इस इमेज को याद कर लेना, तो हमेशा याद रहेगा taters means आलू. Young gentlemen are generally overfed with taters. I ordered him in my deepest voice to get a cutlet and potatoes and everything else that would go with them, and to inquire if there were any letters for Trotwood Copperfield E. Squire. अब इसका क्या मतलब है? डेविड कह रहा है कि कटलेट ले आओ, पोटैटोज ले आओ, और भी अगर कुछ है जो कटलेट और पोटैटोज के साथ जाता है वो भी ले आओ, एंड साथ ही ये इंक्वायर करो, ये पता करो कि कहीं ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड ई स्क्वायर के लिए कोई लेटर्स आए. अब डेविड ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वो अपनी सुपीरियोरिटी जताना चाहता है. सो ई स्क्वायर का मतलब क्या है? इन इंग्लैंड इन द पास्ट अ फॉर्मल टाइटल रिटन आफ्टर द नेम ऑफ अ मैन बिलोंगिंग टू हाई सोसाइटी. सो डेविड अपनी सुपीरियोरिटी जताना चाहता है, इसलिए उसने ये सेंटेंस बोला कि जाओ पता करो कि कोई ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड ई स्क्वायर के लिए कोई चिट्ठी आई है क्या. आई न्यू देयर वुडंट बी एनी. अभी तो डेविड जस्ट आया ही था इन. ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग एनी लेटर्स, बट वो कोई बहाना ढूंढ रहा था, कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा था वेटर को जताने के लिए दैट आई एम ग्रोन अप, दैट आई बिलोंग टू अ हाई सोसाइटी. I knew there wouldn't be any. There couldn't be, but I thought it manly to appear that I was expecting one. He soon came back to say that there were none. मतलब कोई चिट्ठी नहीं आई है, वेटर ने आके डेविड को बताया. At which I acted surprised. अच्छा चिट्ठी नहीं आई, that type of thing. And began to lay the cloth for my dinner on a table by the fire. So fireplace के साथ जो टेबल था वहाँ वेटर ने क्लॉथ ले किया ताकि डेविड वहाँ बैठ के डिनर कर पाए. आफ्टर डिनर बींग इन अ प्लेजेंट मूड. सो डिनर करने के बाद डेविड का मूड बहुत अच्छा है. आई डिसाइडेड टू गो एंड सी अ प्ले. आई चोज कॉवेंट गार्डन थिएटर. सो वो पास में कॉवेंट गार्डन थिएटर है, वहाँ प्ले देखने गया. आई हैव पुल्ड आउट दिस मैप फ्रॉम गूगल. सो दिस इज कॉवेंट गार्डन एंड दिस इज चेरिंग क्रॉस. सो चेरिंग क्रॉस कौन सी जगह थी? जहाँ डेविड का इन था, होटल था. एंड कॉवेंट गार्डन वॉज द प्लेस जहाँ वो थिएटर में प्ले देखने गया था. सो एज यू कैन सी, अभी आगे रेफरेंस इसलिए बता दूँ. सो इस तरह का थिएटर होता था पहले. यू कैन सी बॉक्सेस लाइक दिस. हाँ, इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होता था.
There, from the back of a center box, I saw Julius Caesar and the new pantomime. Now, pantomime in Britain, a theatrical performance which has music and jokes and humor. So basically, pantomime is a comedy play. अब Julius Caesar क्या है? Julius Caesar एक रोमन रूलर था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था. So how he was killed, assassinated, ताकि वो और पावरफुल ना हो. So Julius Caesar is a play which has been written by William Shakespeare. So डेविड डिनर के बाद ये दोनों प्लेस देखने कॉवेंट गार्डन थिएटर पहुंचता है. एट स्कूल दीज रोमन्स हैड सीम्ड स्टर्न एंड डिफिकल्ट. सो बेसिकली जो जूलियस सीजर प्ले है इसके जो कैरेक्टर्स है वो रोमन्स थे. स्टर्न मीन्स सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट. डिफिकल्ट मीन्स हार्ड टू डील विद, जिनको समझना बहुत मुश्किल हो, जिनको डील करना बहुत मुश्किल हो. बट हेयर दे वर वॉकिंग इन एंड आउट फॉर माई एंटरटेनमेंट. डेविड कह रहा है कि जब वो स्कूल में जूलियस सीजर का प्ले देखता था तो जो रोमन्स थे, जो ये कैरेक्टर्स थे जो प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कैरेक्टर्स बहुत डिफिकल्ट, बहुत स्टर्न, बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे. बट यहाँ कोवेंट गार्डन थिएटर में जब वो जूलियस सीजर देख रहा था, सो इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग. ही वॉज एंजॉइंग वॉचिंग देम इन द डाजलिंग लाइट्स. द रोमन्स वर नॉट लुकिंग दैट सीरियस, स्टर्न, डिफिकल्ट जितना वो स्कूल डेज में जब वो जूलियस सीजर देखता था तब दिखते थे. I found it refreshing and delightful, but the show's mixture of reality and mystery and the influence of the poetry, the lights, the music, the company, the glittering and the brilliant scenery was so dazzling. अब इसका क्या मतलब है? इसमें डेविड कह रहा है कि जो शोज मिक्सचर ऑफ रियलिटी एंड मिस्ट्री. अब जूलियस सीजर जो प्ले है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रियलिटी एंड मिस्ट्री एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ पोइट्री, जो पोएम्स यूज की गई थी प्ले में, द लाइट्स, द म्यूजिक, द कंपनी, द ग्लिटरिंग एंड द ब्राइट सीनरी. कुछ इस तरह का थिएटर होगा जहाँ एवरीथिंग वॉज ग्लिटरिंग, एवरीथिंग वॉज dazzling and so endlessly delightful that when I came out to the rainy street at midnight, जब मैं रात को, midnight is around 12 बजे रात को, I felt as if I had come from a fantastic place where I had been living an adventurous life to a noisy, poor lit, muddy and miserable world. कुछ इस तरह से. So from a dazzling world where he was watching the plays of Julius Caesar and he was also watching a pantomime, he came out in a poorly lit, बहुत अंधेरा अंधेरा, and बारिश हुई हुई थी and बहुत noisy भी थी. He had come to a miserable world. Miserable means जो आपको भी unhappy करते, something very sad. विद दिस हमारा चैप्टर 10 एंड ऑफ स्कूल डेज फिनिश होता है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.